There is something called as Bhairavi Rakta Shuddhi. Rakta Shuddhi means purification of your blood. नमस्कार, मैं प्रशिका गोस्वामी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रशिका। तो हमारे पिछले एपिसोड में आपने जाना माँ लिंग भैरवी के बारे में, कैसे सदगुरु ने उन्हें मैनिफेस्ट किया, कैसे वो इस दुनिया में आई, कैसे उनका पहला टेम्पल तैयार हुआ, कैसे उन्हें कॉन्सेक्रेट किया गया और कैसे हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। देवी के बारे में जानने के बाद आज बारी है वहाँ के रिचुअल्स के बारे में जानने की कि देवी टेम्पल में क्या क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं या फिर देवी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं। सबसे पहले आता है भैरवी रक्त शुद्धि, जिसके बारे में सदगुरु ने भी अपने एक YouTube वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से बताया है। Bhairavi. She is a consequence of a certain algorithms that we built for her, so that she exudes a certain kind of energy. One key aspect of what Bhairavi stands for is, there is something called as Bhairavi Rakta Shuddhi. Rakta Shuddhi means purification of your blood. If you take last 6-7 generations, you are just a replay of the 7 generations of people. The kind of body that you have, the kind of mind that you have, whether it works, that it doesn't work, both. When you were 18, you thought you were shaken off all those people, but slowly you see they are beginning to manifest. So this is Bhairavi Rakta Shuddhi means purification of your blood from all your ancestral imprints, so that if you sit here, it's just you, just life, not just a rerun of the old movie. You can shape this whichever way you want. This is important. If you are spiritually oriented, this is fundamental. सदगुरु द्वारा ये बताया गया कि भैरवी रक्त शुद्धि जो है ना कि सिर्फ आपकी बल्कि आपके एंसेस्ट्रल जो भी आपके कर्माज हैं उनका प्यूरिफिकेशन करने का काम आता है। इसके अलावा ईशा के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया की जाती है जिसे क्लेश नाशना क्रिया भी कहते हैं। स्पेशली ये किया जाता है आपके ऑरा क्लिनजिंग के लिए, जिनको ज़्यादा नज़र लगती है या फिर जो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं या फिर जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही या वो मेंटली खुद को स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं, उनके लिए ये क्रिया की जाती है। इस क्रिया में ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक्चुअल में लेमन एंड टर्मरिक एंड वाटर के साथ में फायर एलिमेंट के साथ आपको नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया के बाद एक तरीके से नज़र उतारा जाता है। दैट इज़ द एग्जैक्टली ऑरा क्लिनजिंग थिंग दैट इज़ नेम्ड एज क्लेश नाशना क्रिया, जो ईशा के प्रेमिसेस में ही होता है। अगर आपको ये क्रिया करवानी है, यू हैव टू बी देयर, और इनकी बुकिंग आपको पहले से ही करनी पड़ती है क्योंकि 2-2, 3-3 महीने की एक रो में बहुत सारे नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं। सो इफ़ यू वांट योर स्लॉट देन यू हैव टू बुक इट अर्ली। भैरवी रक्त शुद्धि के बाद क्लेश नाशना क्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया मानी जाती है। In our yoga center, we have a rejuvenation center. We have what is called as Klesha Nashana Kriya. Sorry, what is it called? Klesha Nashana Kriya, that means a Kriya which destroys impurities. To put it simply, few of them knew what to do, maybe previous generation knew, gradually they just started doing like this. But if you observe a person and do it in the right way, it does certain things, so we have a whole scientific process. How to do this, just the same thing. See, today let's say you're very exhausted or… Rejuvenates you Yes, completely. rejuvenates you in some sense. So this is a water wash. Similarly, we can do wind wash, we can do fire wash, we can do substance wash like with grains and other things we can do. So what this is like a fire wash, but it needs to be done in a certain way. Water can touch our body, water can touch our skin, there's no problem. Fire cannot touch your skin, it needs to be done in a certain way. They give me the study report which is amazing. There is a record of children
who have come with this ADD and these kind of problems. 21 Kleshanashanas, they're completely free of medication and fine. No medicine, no any kind of treatment, nothing. Just fire wash 21 times in 21 days and they come out clean and no medication, nothing, they're fine after that. There are any number of records. I was just looking at this 4 days ago and it's amazing. But this, all our grandmothers wanted to do. They did not just do. I remember many times, when I came home from outside somewhere as a little kid, my mother would look at me and say, I think you need drishti, we must take. I said, come on, rubbish, I don't want any drishti. But she wouldn't let me, she would make… I would be running around, still she would be doing something. I don't know whether it worked or not, I was too whatever mentally, too against all those things. But today there is proper record of what it does to people, tremendous things it's doing to people. So that means it does exist. It does, I mean there's no question about it. It does. The question is, do you know how to do it properly? We're thinking of… looking at this, I spoke to the people who are doing it and said, we must give large-scale training to people. We must even produce videos and put it out so that everybody knows how to do it in their homes. Because this is such a simple thing that anybody can do at home and it has tremendous impact. This is the option you can get anytime. So भैरवी माँ के टेम्पल का जो ओपनिंग का टाइम है वो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 2 बार होता है। बीच में दोपहर के वक्त टेम्पल बंद किया जाता है दोपहर के अभिषेकम के बाद। अभिषेकम जो है दिन में 3 बार होता है, एक मॉर्निंग अभिषेकम होता है, एक आफ्टरनून अभिषेकम होता है एंड देन इवनिंग अभिषेकम होता है। तो मॉर्निंग में जब टेम्पल ओपन होता है, जो देवी सेवक या देवी सेविकाज होते हैं उस टेम्पल को ओपन करते हैं 5:30 के अराउंड। ऐसा माना जाता है कि पौर्णिमी के बाद बॉयज़ जो हैं पौर्णिमी से सेवा करते हैं, जो कि 11 साल पहले अवेलेबल नहीं था। जब पहले माता आई थी उस टाइम पे सिर्फ लड़कियां ही देवी सेवा कर सकती थी, बट जब 11वां साल था माँ का, उस समय सदगुरु ने ये गेट ओपन किया बॉयज़ के लिए भी, मेल्स के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली माँ का प्यार किसे नहीं चाहिए। सो देवी सेवा के दौरान उन्हें बैचेस में बांटा जाता है एंड दिस इज़ वन थिंग एंड यूनिक टेम्पल कि इस टेम्पल में हर किसी को इक्वली, बिना कोई जाति, बिना कोई धर्म पूछे, बिना किसी जेंडर बायस के यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। यू जस्ट नीड टू कंप्लीट इनर इंजीनियरिंग, योर शांभवी महामुद्रा शुड बी इनिशिएटेड लाइक दैट। आपको 40 दिन का मंडला कंप्लीट करना होता है। देन इफ़ यू अप्लाई फॉर भैरवी सेवा यू आर ओपन टू इट एंड ईशा विल कॉल यू विद द ओपन हार्ट। आप वहाँ पर जा सकते हैं, माँ की सेवा कर सकते हैं। इफ़ यू आर लकी इनफ यू विल गेट द स्लॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लिंग सेवा और देवी सेवा के लिए अप्लाई करते हैं और इसे पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि आप ऑलरेडी अगर देवी साधना में हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कुछ रिचुअल्स पता होते हैं, तो वहाँ इनर सेंक्टम में आपकी जो हेल्प है वो इजी हो जाती है। इसी वजह से आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। सो आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको अगर मॉर्निंग स्लॉट मिलता है तो आपको देवी का वो ओपनिंग स्वरूप देखने को मिलता है। जब आप टेम्पल को खोलते हैं और गेट के बाहर से आप जब देवी को देखते हैं, वो पहला जो नज़ारा होता है वो बहुत कमाल का होता है। मैं लकी थी कि मैंने भी देवी सेवा किया हुआ है, सो मैं ही जानती हूँ इस फीलिंग को। सो जब टेम्पल ओपन होता है उसकी थोड़ी देर बाद ये पहला अभिषेक होता है। जो पहला अभिषेक होता है और उसमें 11 ऑफरिंग्स होती है। एक्चुअली अभिषेकम में सारे ही 11 ऑफरिंग्स होती है। इट इज़ इंक्लूड नवनीतम, दैट इज़ कॉल्ड बटर, and then chandan, then haldi, then they offer sindoor, then there is a cloth, neem leaves and mogra. There are 11 offerings are there that offer to देवी। जितने भी चीज़ें जो थ्रेड है या फिर जो भी देवी वस्त्रम आपको अवेलेबल मिलता है ऑनलाइन, वो ऑलरेडी कॉन्सिग्रेटेड होता है, वो देवी को रोज़ ऑफ़र किया जाता है। इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल देयर एंड यू वांट टू डू द अभिषेकम, तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आपके बिहाफ पे आपके नाम के साथ वहाँ पर ऑफरिंग चढ़ाई जाती है और प्रसाद जो है आपके घर में पार्सल किया जाता है। सो इफ़ यू कैन नॉट विजिट द टेम्पल देन टेम्पल कैन कम टू योर होम। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है ईशा में। उसके बाद आप
बाकी जो रिचुअल्स हैं यहाँ पे, दीपक ऑफ़र होता है जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते, किसी और से भी आप ऑफ़र करवा सकते हैं। वह यहाँ पे थ्रेड बांधी जाती है त्रिशूल में, दैट इज़ ऑल्सो ऑस्पिशियस। इसे माना जाता है कि आप देवी के साथ अपना एक बॉन्ड क्रिएट करते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हो। यहाँ पे अन्नदान होता है जो ऑब्वियसली हमारे भिक्षा हॉल में जाता है। तो आप देवी को अपना जो दान है, जो अपना अन्नदान है, वो चढ़ा भी लेते हैं और वो एक्चुअली में डाइवर्ट होके नीडफुल लोगों तक पहुँच भी जाता है। सो अभिषेकम बिगिन विद आरती। सारे ऑफरिंग्स के बाद फिर से आरती होती है और फिर अभिषेकम कंप्लीट होता है। मॉर्निंग के अभिषेकम के बाद में सारे विजिटर्स वन बाय वन इनर सेंक्टम में जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ पे करना पड़े या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। आप चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर चाहे इम्पॉर्टेंट गेस्ट हो या कोई भी हो, अगर आप भारत के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं तो आपको डायरेक्ट भी एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वहाँ पे क्राउड है देन यू हैव टू कम इन अ रो। इफ़ यू देर इज़ नो सिक्योरिटी रीज़न देन यू विल बी कमिंग इन अ रो। आप रो से अंदर आते हो और हर किसी को, देवी को उतनी ही पास से देखने का मौका मिलता है जितनी पास से कोई और देखता है। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। कम टू द पार्ट ऑफ अनदर रिचुअल्स that we are going to talk about. After Aarti and Abhishekam, there are lots of rituals in the temple that are happening actually. So आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप देवी को माला अर्पण कर सकते हैं, वस्त्र अर्पण कर सकते हैं और नेत्र अर्पण कर सकते हैं। नेत्र अर्पणम इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड स्पेशल। ऐसा माना जाता है कि माता का जो थर्ड आई है वो आप उनको अर्पण करते हैं और एक पूरे महीने तक, एक फुल मून के आने तक, उस साइकिल तक उसे रखा जाता है और वहाँ पर से आपको बाद में पार्सल किया जाता है आपके एड्रेस के लिए। वो एक कॉन्सिक्रेटेड थर्ड आई होती है जो आपके घर पे भेजी जाती है। आप उसे अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। ये नेत्र आपके मन के भय को दूर करता है और आपको आगे कामयाबी की ओर ले जाने में मदद करता है। इस नेत्र को ऑफ़र करने के लिए आपको ईशा के साइट में रजिस्टर करना पड़ता है, बट ऑफरिंग के लिए एक बार एटलीस्ट आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आपको उसी टेम्पल के एरिया में बैठकर 3 बार भैरवी स्तुति पढ़नी पड़ती है, फिर वो नेत्र ऑफ़र किया जाता है। देयर आर 2 सेवास जो आप वहाँ पे प्रेजेंट ना भी हो तो कर सकते हैं, दैट इज़ प्रहार वेलक्कू एंड भैरवी वेलक्कू सेवा। ये दिया है जो माता के इनर सेंक्टम में और मंदिर के बाहर वाले सेंक्टम में प्रेजेंट किया जाता है माँ के लिए। जिनके फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होती है, जो अपने फैमिली में टुगेदरनेस की कमी महसूस करते हैं या जिन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली में लाइट की कमी है, ज़िंदगी में लाइट की कमी है, वो ये सेवा करते हैं अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए। तो अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं वहाँ पे, तो जो भी देवी सेवक वहाँ पे मौजूद होता है वो आपका नाम लेते हुए उस दिया को जलाता है और वहाँ पर ऑफ़र करता है। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज़ जो चाहते हैं कि माँ को अपने घर लेकर आएँ, उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि वो कैसे यहाँ तक आएंगी, क्योंकि मंदिर तो वहाँ है। बट सद्गुरु ने उसका भी एक उपाय ढूंढ निकाला है। अगर आपका घर छोटा है एंड यू कैन नॉट ब्रिंग यंत्र, देन यू हैव ऑप्शन फॉर देवी गुड़ी, जो कि ईशा लाइफ में ईजिली अवेलेबल है। आप देवी गुड़ी ला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यंत्र सेरेमनी के बारे में। यंत्र सेरेमनी बहुत खास होता है और यंत्र को लाने के लिए भी बहुत सारे गाइडलाइंस है। ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है जो ईशा योगा सेंटर के अंदर ही कंडक्ट किया जाता है और स्पेसिफिकली पर्सनली सद्गुरु इस पूरे प्रोग्राम को अपने ध्यान में रखकर करवाते हैं। One of the main things which does not allow a human being to find helpful, his full potential is friction. Devi and all the forms, different types of yantras available with regard to Devi is about that, to bring grace in such a way that you can take up things and do things and you still do not get into friction. Her grace will take care of that. We estimated if the homes are anywhere between 2,000 to 2,500 square feet of home, we thought the small yantra would do. When we noticed that the homes are larger than that, we said, this is not enough, and we brought the Avigna. And Avigna has a slightly more business-like attitude towards it, more for success and prosperity. But of course, those who want to make use of it for spiritual processes can always make use of it. That element is always the basic element. The idea is to create an energy form, to create assistance for people to do whatever they want to do.
यहाँ पर सद्गुरु प्रेजेंट होते हैं और माता की जो जितनी भी ऑफरिंग है, जो अभिषेकम की प्रक्रिया है, जो मंत्र चैंटिंग की प्रक्रिया है, वो प्रॉपर तरीके से आपको सिखाई जाती है। बट इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि आपका घर जो है मिनिमम 2500 स्क्वायर फीट पर होना चाहिए। आप चाहें तो घर हो या शॉप हो, अगर आपका 2500 स्क्वायर फीट का एरिया है, आप देवी यंत्र ला सकते हैं। उससे भी बड़ा एक और यंत्र है जो हाउस या शॉप या फिर कंपनी स्पेस जो है जहाँ पर आप देवी को स्थापित करना चाहते हैं वो 2500 स्क्वायर फीट से भी बड़ा है, देन यू कैन ब्रिंग अभिघ्न यंत्र देयर। अभिघ्न यंत्र देवी यंत्र का बड़ा वर्जन है और उससे ज़्यादा पावरफुल है, उससे बड़ा एरिया चाहता है। सो इफ़ यू आर ब्रिंगिंग देवी होम देन यू हैव मैनी ऑप्शंस and only one thing you need to require, that is devotion. Bhairavi, she's super intense. She'll come at you in waves of intensity. If you can simply be there without raising questions, without making conclusions, oh, she's with me, oh, this is gonna happen, Devi, do this for me, do that for me, nothing, simply, if you can be there, you will see she will come in waves and waves of intensity. If you want your life's experience to become rich, you must allow something to overwhelm you in such a way that you don't exist. Only if we are overwhelmed by something much larger than ourselves, only then every breath, every step is worthwhile. So, just go sit there, let her destroy you. When you enter the Linga Bhairavi temple, it's exuberant. It gives you this kind of energy, and she takes away fear of failure, fear of death, fear of life, fear of everything. I think I had a strong feeling that I wanted to bring Linga Bhairavi Devi home, and then I knew that there is this opportunity which the Isha Yoga Center offers, where you can take a Linga Bhairavi idol and you can invite the goddess herself home. Linga Bhairavi Yantra is actually a technology. Once you get it home, you get to share the grace of the Linga Bhairavi Devi with everyone. I'm excited because I think it's time not to just take the goddess home, but to also embody her qualities and to become that. I'm just excited to bring Devi home. इसके अलावा if you cannot do anything, still you have a window that is open with देवी, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं डिवोशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप यंत्र लाओ चाहे मत लाओ, आप अपनी उनकी फ़ोटो अपने सामने रखो या मत रखो, आप टेम्पल जाओ या ना जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू लव हर, इफ़ यू आर डिवोटेड टू हर, शी इज़ ऑलवेज ओपन टू यू। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट सिट समवेयर एंड जस्ट रिमेंबर हर। तो यूजुअली जो है नवरात्रि साधना या थाइपोसम में जो साधना की जाती है बहुत ही स्पेशल मानी जाती है। इस समय में गाइडलाइन ये होती है कि आप 3, 6, 9 या फिर 11 बार देवी स्तुति पढ़ें और देवी दंडम करें और देवी की सेवा करें। सो स्पेशली जो है 11 नंबर को हाईलाइट किया गया है क्योंकि 11 जो है देवी का मेन नंबर है। सो यू कैन डू इट 11 टाइम्स। अगर आप करते हैं, इट इज़ गोइंग टू ओपन सम विंडो दैट इज़ यू आर एक्चुअली नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या बदल सकता है, बट देवी नोज एवरीथिंग। तो जो चीज़ आपने ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं, इमेजिन भी नहीं किया, दैट ऑल्सो कैन ओपन फॉर यू। Namaskaram Sadhguru. As Thaipusam is coming, I want to know what Bhairavi Sadhana actually is. How can I fully make use of it? And also, how is it different from other Devi sadhanas like Navratri sadhana? You know, if you look at the other Devis, Lakshmi is like that, Saraswati is like this, Bhairavi is like this. So, we have chosen a very fierce form for her. Do not misunderstand fierceness for cruelty or negative kind of approach to life.
She's fierce with her passion. She's very fierce with her compassion. She's also very fierce. If you try to swim upstream, it's a powerful stream. You can't go upstream, you can only go with her. The other Devis are gentle, nice, they have their own qualities, but this is very fierce. And if we consecrated her in a very gentle way, most of you wouldn't feel a damn thing. Because she's so fierce, you can't miss it. If you walk into that place, boom, it hits you in the face. See, the nature of Bhairavi is such, it is… she won't let you rest. It's not for rest, it's for going fast. So, if you're looking for speed of growth, speed of movement, everything should happen to you fast, then Bhairavi. You are playing veena, ting, ting, ting. I'm not saying anything negative, it's very important, those Devis are also very important. First of all, they are consecrated for their different purposes. This is not for knowing, Bhairavi is not for knowing. Bhairavi is sheer energy. Bhairavi is transportation. That means she will blow at you in such a way that you are just thrown somewhere else. You're here, tomorrow you're there. It's not something it'll give you a Google map and you have to find your way. She's not like that. You just go. She blows you away. So, when Devi is made like this, there is a whole science and system to this as to how these things are made. When she is made like this, the sadhana is of a certain kind too. Because entire Devi worship is in some way, you're trying to please her or woo her in a certain way, that she should work in your favor. When somebody is so fierce, they should not be against you. Hello? That's important. So, she should work for you, she should be for you. So sadhana. Sadhana is designed for this purpose, so that your sails are set in such a way that what she blows is always in your favor. And she is on full time. You should be on full time too. Devotion is a very powerful process. It is just that. See, it's like this. It takes a certain amount of intelligence to even come to terms with this, that my own intelligence has maybe provided me food, maybe comfort, well-being, but it's not doing anything else. If your own intelligence is taking you into absolutely ecstatic, blissful places, and above all, it is opening up a whole universe for you, well, fantastic, there's nothing to say about it. But if you realize, or at least if you have the necessary humility and intelligence to realize, I've been around for some time, well, I've passed examinations, I got jobs, I got salaries, I got promotions, I made money, I did this, but nothing fantastic is happening. Whatever people are saying, even before Charles Darwin it was said, but people have been saying human life is the peak of life on this planet. I'm not feeling like on top of the world every day. If you realize this, then naturally you will also understand that it's better to give in to something else which may know better. Is it the deity, is it the guru, is it something else? It's up to you. It's up to you.
But if you see something as little beyond you, it's best to use that, because otherwise you'll waste time. And that's all you got. You don't have anything else except time, and the damn thing doesn't stop for a moment. Tick, 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 life going away. Hello? It's going away. So, because time is so brief, traveling fast becomes very essential. If you had 10,000 years, I would wake you up at 8:30 in the morning. But you don't have 10,000 years. Because time is so brief, being intense becomes necessary. So, finding friendship or the love of Bhairavi, who is that fierce, is very advantageous. One should befriend her. So, इसके अलावा there are 33 names of Devi that you also can chant during this period and every day also. So, कोई बाउंडेशन नहीं है देवी के सेवा के लिए। जैसे आपको अपने माँ के पास जाने के लिए कोई समय, कोई मोमेंट या किसी इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही वो आपकी माँ है। One thing that can go negatively and maybe your family can think negatively, क्योंकि जब आप माँ के abundance में आते हैं, जब आप माँ के grace में आते हैं, वो अपने आप में आपकी उस जगह को इतना fill कर देती है कि आपको किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हो सकता है कि देवी आपकी लाइफ में आए तो आपकी जो अपनी खुद की माँ है ये महसूस करने लगे कि आप उनसे कम प्यार करते हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है काफ़ी चेंज होने वाला है, क्योंकि वो आपका वो जो एम्प्टी स्पेस है वो इस तरीके से भर देंगी कि आपके ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके फैमिली हो, किसी से भी जो आपका मोह माया वाला रिलेशन है वो कम हो जाएगा और आप अटैच तो होंगे पर डिटैचमेंट के साथ। सो देवी के ग्रेस में आने का सबसे पहला संकेत यही होता है कि अगर वो आपके लाइफ में आ चुकी हैं तो आपको किसी की कमी कभी महसूस नहीं होगी, आप अकेले ही अपने आप को पूरा महसूस करेंगे। और जिस दिन आपके साथ ऐसा होने लगे, जिस दिन आपको लोगों से बात करने के अलावा खुद को अकेले रखने के जो चाह है वो बढ़ जाए, तो आप समझ लीजिए देवी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। तो आज के एपिसोड में हमने जाना रक्त शुद्धि के बारे में, क्लेश नाशन क्रिया के बारे में, देवी साधना, देवी अभिषेकम के बारे में, और डिटेल में हमने ये जाना कि देवी को आप कैसे पा सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे महालय अमावस्या के बारे में, काल भैरव शांति के बारे में, दाह निवारणम के बारे में और भी दूसरे रिचुअल्स के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।